Good morning, my dear students. Good morning, sir. Good morning, Viche. Good morning. Good morning, sir. Very nice. God bless you. May Almighty bless you a sound carrier in the future. So, what I am observing, many students are joining. uh, लेकिन थोड़ा सा बेटे आप लोग तो अच्छे हो, टाइम पे ज्वाइन कर गए, पर काफी सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं करा। तो हम लेकिन लेट कमर्स की वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ओरिएंटेड जो होता है ना, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर होता है। ठीक है, इतने दिन में हमने ये कराना है, ये कराना है, इसलिए हम लेट कमर्स को की वेट नहीं करेंगे, उनको एडमिट जरूर करेंगे। तो सभी बच्चे ये हेडिंग लिखेंगे आज। शाबाश। बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। आज मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाने हैं। कॉन्सेप्चुअल मीन्स ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है, इसके ऊपर कारण क्या है। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने आपको कराने हैं बेटे, all are based on certain basic scientific processes. The thing is, first of all, we should understand these scientific processes. So that is why I have made three columns. So I am going to explain the three basic processes, and later we will discuss the conceptual questions. So Shabash, my students. Okay, bete. So first, let's learn the basics about the optical processes. Process which one? Refraction, bete. Look at the heading, refraction, and must note down its spelling. It is not a reflection, it is a refraction. Listen, bete. I have drawn a horizontal line here such that this horizontal line separates optically rarer and optically denser medium. Now listen, teacher is saying not rarer and denser. He is saying optically rarer and denser medium. First of all, we should understand it. Suppose I make the ray of light to pass through rarer medium, ray of light, and note down its velocity. Okay. Later on, I I pass the ray of light in the denser medium and note down its velocity. Remember, as per definition, the medium in which ray of light travels comparatively at slower speed, that is known as denser medium. तो दूसरे शब्दों में जिसमें लाइट तेजी से जा सकेगी, तेजी से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो तेज गति से गई, वो रेयर मीडियम। तो एक मेमोरी टूल लिखते हैं यहां पर, velocity of light in rarer medium is larger than velocity of light in denser medium. एग्जांपल से बताऊं तो पानी में लाइट तेज जाती है, कांच में कम गति से जाती है तुलनात्मक दृष्टि से। ठीक है, सो दैट मीन्स आउट ऑफ वाटर एंड ग्लास, ग्लास इज डेंसर मीडियम। और ये जो लेयर होती है दोनों मीडियम्स को सेपरेट करती है बेटे, इसको भी टेक्निकल नाम दिया गया रिफ्रैक्टिंग एज। समझदार बच्चा साथ के साथ लिखेगा रिफ्रैक्टिंग एज, EDGE। ओके, so this is your source of light in the rarer medium. It throws the light in a straight line. You know straight line, which property? Rectilinear propagation. It falls at this point of the refracting edge. This point P is mentioned as point of incidence. P stands for point of incidence. And I asked one of the students, had there been no rarer or denser medium, where this ray of light would have gone? Your answer should be
Sir, it will maintain its same straight line and it will go in the direction which you are presently mentioning with the yellow color dotted line. Yes, that was the original direction. But bete, to your utter surprise, it will not happen like that. Let me tell you what will happen. I have drawn a normal here. Normal is also called perpendicular because it makes 90-degree angle with the refracting edge. Okay? To your utter surprise, you will be surprised to know that a ray of light while entering in the denser medium bends towards the normal. यानी कि असली रास्ता ये व्हाइट कलर वाला पाया गया, ना कि येलो कलर डॉटेड पाथ। और ग्रीन कलर वाली लाइन कौन सी है? ग्रीन कलर वाली नॉर्मल, यानी डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करते ही नॉर्मल की तरफ झुकगी, रहेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं पर झुकगी, another direction, right? So white ray is called as what? RR, refracted ray. Yellow dotted path is known as what? Expected path, expected direction. Okay? जो कि ऐसा नहीं पाया गया। तो येलो डॉटेड लाइन और व्हाइट रे के बीच में कितने एंगल से लाइट ने अपने आप को मोड़ लिया? मोड़ने की इंग्लिश क्या होती है बेटे? डेविएट। तो डेविएट से इन्होंने नाउन बना दिया, डेल्टा लिखते हैं। ये ग्रीक लेटर है डेल्टा। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके? एक एंगल टीचर ने आपको व्हाइट कलर से शो कर रखा है, विच द रिफ्रैक्टेड रे, देखो व्हाइट कलर से, लेट मी चेंज द कलर, व्हाइट कलर से विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। ये 3 लाइनों से दिखाया जो व्हाइट कलर वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके? एक एक एंगल टीचर ने पिंक कलर से शो करा, विच द इंसिडेंट रे, देखो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, मेक्स विद द नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल टीचर ने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द रिफ्रैक्टिंग एज, जिसको टीचर 4 लाइनों से शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल जी, एंगल ऑफ ग्लास। तो देखो कितने सारे एंगल बताए टीचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया, एंगल ऑफ ग्लांस बताया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताया, एंगल ऑफ डेविएशन बताया। ओके? So this ray of light does not maintain its dotted yellow direction as expected, rather it goes into another natural straight line direction which is deviated towards the normal. This process is known as refraction. Refraction is the process when a ray of light coming in the incident in the straight line and enter from one medium to another medium, it does not maintain the same straight line, rather it follows another straight line. This process is called refraction. अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, बेटे मेरे को तुम ये बताओ कि जिस कलर को टीचर इस वक्त ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, जिस एंगल को ब्लू कलर से शेडेड करके दिखा रहे हैं, वो कौन सा कलर है, वो कौन सा एंगल है? बच्चा कहेगा सर देखो आपने जो ब्लू कलर से शेड करा है ना, इसमें तो 2 एंगल ऐड हो गए हैं, आर एंड डेल्टा। बिल्कुल सही, लेकिन ये ब्लू कलर वाला एंगल पिंक कलर वाले एंगल से वर्टिकली अपोजिट है। और मैथ में हमने क्या पढ़ा? when two lines cross each other the vertical angles are always equal to each other. That means the sum total of angle of refraction plus angle of deviation, they jointly make the blue angle. Blue angle is vertically opposite to pink angle. Pink angle is angle of incidence. तो हमने क्या रिजल्ट देखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन ये फार्मूला तब ट्रू है बच्चे जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आए, याद रखो। और कोई बच्चा पूछे मेरे से, सर रिफ्रैक्शन ज्यादा होएगी या कम होएगी उसका कैसे पता चलेगा?
वेरी सिंपल। ये जो दो वेलोसिटीज ऑफ लाइट दी है ना आपको टीचर ने, ये देखो, दिए कि नहीं? यस। इनकी इनकी रेशो ले लो या इनका डिफरेंस ले लो, एक चीज लेनी है। मान लीजिए आपने इनका रेशो ले लिया। रेशो कैसे लेनी है? लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो वेलोसिटी ऊपर लिखनी है लाइट की, जिस मीडियम में लाइट एंटर करा उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी नीचे रखनी है। सो दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको एक रेशो देगा। उस रेशो को हम म्यू सिंबल से लिखते हैं। कौन से सिंबल से लिखते हैं बेटे? म्यू सिंबल से। तो म्यू को नाम क्या दिया साइंटिस्टों ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ किताबों में म्यू की बजाय स्मॉल एन भी लिख देते हैं इस रेशो को, स्मॉल एन। सो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें लाइट बाद में एंटर करेगी, यानी ऑफ डेंसर मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? जहां से लाइट आई। यानी दिस म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। जितना म्यू ज्यादा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा? कि ये तो आपने रेशो से बता दिया। मान लीजिए वेलोसिटीज हमारे पास ना हो तो फिर ये डेल्टा नोट कर लो। जितना म्यू ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन, जो ब्राउन कलर से शो करा टीचर ने, वो भी ज्यादा होगा। जितना डेल्टा ज्यादा होगा, दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन प्रोसेस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अब बच्चे की तरफ से आएगा क्वेश्चन, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन। सर आखिर ये रे ऑफ लाइट येलो कलर वाले डॉटेड स्ट्रेट लाइन पाथ को मेंटेन क्यों नहीं कर पाती? आपने बताया ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, ये डायरेक्शन इधर को हो जाएगी टुवर्ड्स, हम मानते हैं। पर इसके रिफ्रैक्शन का रूट काज क्या है? तो जब रिफ्रैक्शन का रूट काज स्टडी करा गया तो दो पॉइंट सामने आए। ओके, उनकी डिटेल में हमने नहीं जाना, बस वो रीजन आपको पता होने चाहिए। लेकिन पहला, दोनों मीडियम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है, इक्वल नहीं होती। ओके। दूसरा कारण है, लाइट अपने खुद को ट्रेवल करने के लिए हमेशा वो रास्ता फॉलो करती है जिस रास्ते में उसको कम से कम अड़चन मिले। ray of light always prefers to go through that straight line path where it faces the least obstruction. Number one. Number two, the velocity of light being different in the different optical mediums. These two facts are found to be the root causes behind the observed phenomena refraction. बच्चे, ओके। एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था स्नेल। वो कहता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का मैं एक और तरीका भी बता सकता। हमने कहा सर बता दो क्या होता है। देन ही टोल्ड ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रेयर मीडियम, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द डेंसर मीडियम। ये रेशो से भी सेम म्यू निकलेगा जैसे इधर वेलोसिटीज की रेशो से। अब किसी बच्चे को हो सकता है साइन ना पता हो, तो अगले साल हम 10th क्लास में आपको मैथ में पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन वगैरह। फॉर द टाइम भी आप सिर्फ इस फार्मूले को याद ही रख सकते हैं। ये था पहला बेसिक कॉन्सेप्चुअल करने से पहले। याद रहे इस सारे फिनोमिना में ये नहीं भूलना आपने कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जैसे कि पानी से कांच में। अब अपोजिट करते हैं, लेट्स थ्रो द लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में करते हैं बेटे, मैं जल्दी से बनाऊंगा फिगर। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब होता क्या है, ध्यान से सुन। सोर्स ऑफ लाइट से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्रेट लाइन गया एज एन इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश हो गया, एंगल ऑफ ग्लेंस आर डैश हो गया। जब रेयर में बाद में लाइट एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाते हैं, रहेगी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन को बदल के अवे। देखो, जाना किधर को चाहिए था?
हैड इट मेंटेन दी सेम स्ट्रेट लाइन, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करती तो किधर को जाती? तो आप कहोगे सर जिधर को आप येलो कलर की डॉटेड लाइन शो करते हो ना, इधर को जाती अगर इसने अपनी सेम स्ट्रेट लाइन को कायम रखा होता। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द सेम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, इट विल डेविएट such that it moves to another through another straight line direction such that that is away from the normal से परे हट गया। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटे, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया होता है परपेंडिकुलर के साथ, उसको हमेशा हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेटे। लेट्स कॉल इट आर डैश। और जो डॉटेड पाथ है ओरिजिनल, और जिधर से असली में लाइट गई और जिधर से एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड कौन सा? डॉटेड येलो पाथ, गई किधर से? जिधर से टीचर ने व्हाइट लाइन, दोनों के बीच में एंगल दिखाया डेल्टा डैश, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक बात देखो जरा, पिछले वाले केस में जो हमने करा था फर्स्ट वाला केस, उसमें आर एंगल आई से छोटा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज स्मॉलर, ओके। लेकिन यहां देखो इस केस में, यहां आर डैश इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, ओके। और अगर मैं आर डैश में से डेल्टा डैश माइनस कर दूं, तब आप सारे बोलोगे सर फिर आपका ये एंगल आएगा जिसको इस वक्त आप ब्राउन कलर से शेड कर रहे हो। देखो ब्राउन कलर से शेड कर दिया सर, तो ये ब्राउन कलर वाला एंगल बनेगा क्या लिखने में? सर व्हाइट वाले में से ग्रीन एंगल माइनस कर दो, दैट मीन्स दैट मीन्स देखो बेटे अभी भी एंटर कर रहे हैं आपके क्लासमेट्स, है ना। ये लापरवाही है, देखो टीचर ने कितना करा दिया। तो आर डैश में से डेल्टा डैश को अगर माइनस कर दे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, आई डैश। देखो इस बार माइनस करा है बच्चे, याद रहे आर डैश और डेल्टा डैश में माइनस, तब आई के बराबर अगर लाइट डेंसर से रेयर, और उसमें प्लस था पहले वाले केस में, देखो तो राइट। वन मोर थिंग, जितना दोनों वेलोसिटीज में लाइट की वेलोसिटीज में डिफरेंस ज्यादा होगा रेयर और डेंसर में, उतना ही डेल्टा ज्यादा होगा डैश, डेल्टा डैश उतना ही रिफ्रैक्शन ज्यादा, ओके। इसका भी रूट काज आपने वही बोलना कि रे ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। सेकेंडली, any straight line going ray of light follows that path which faces least obstruction on its path, ओके। अब तीसरा बेसिक जो आज की कंसेप्चुअल के लिए जरूरी है वो भी सुनो। तो ये जो टीचर ने कराई है ना, इनको टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एक बात और सुनना जरा, सेकेंड वाले केस में अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को धीरे धीरे ऊपर उठाऊं तो आई एंगल बढ़ता जाएगा, आई बढ़ता जाएगा तो आर डैश भी बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब मैं आई को ऐसी वैल्यू पर ले जाऊंगा कि आर डैश एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग एज के अलोंग चले जाएगी। Let me speak in English. Gradually raising the source of light upwards, I increase the angle of incidence, and a moment appears when I find that angle of refraction exactly becomes equal to 90 degree. That means the refracted ray, which is shown in white color here, instead of going in this direction, it will go along the refracting edge. Such a process, such a special case of refraction is given a new name, and that name is grazing, GRAZIH। याद रखना ग्रेजिंग में आर डैश 90 डिग्री होता है। और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस वक्त नोट करूंगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, तब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्पेशल नाम दिया गया
क्रिटिकल एंगल सी से लिखते हैं, क्रिटिकल। ओके। अब बच्चा कहता है सर आप तो सोर्स ऑफ लाइट को और भी ऊंचा ले जा सकते हो ताकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए। जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा ना, देखो ये रिफ्लेक्टिंग एज मैंने यहां ले लिया सोर्स ऑफ, और ये नॉर्मल ड्रा करा, देखो कितना बड़ा एंगल बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम। तो यहां पर एंगल मेरा जब सी से भी बड़ा होएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 90 से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो उसका मतलब है लाइट को वापिस डेंसर मीडियम में आना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग रेयर में जाएगी, ना ही रिफ्लेक्टिंग एज के लॉन्ग जाएगी, डेंसर में जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एब्रीविएशन बड़ा पॉपुलर है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद है बेटे? कुछ बच्चे आ रहे हैं, हम जरा उनको एंटर कर लें। दिन में 3 बच्चे। इनको लिखने का भी टाइम मेरा बेसिक्स मैं पूरा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बार बार कंपैरिजन। सो बेटे ये दोनों प्रोसेसेस के कंपैरेटिव जो रिफ्रैक्शन प्रोसेसेस समझाई हैं उसकी की पॉइंट्स मैं एक बार बता दूंगा। शाबाश, इधर देखो, अब जो भी नट शेल इसमें से निकला, नट शेल बस यही नोट करना बस आप। फर्स्ट सेकंड देखो, इधर टेबल बना दिया टीचर। फर्स्ट सेकंड, पहले में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ, ठीक है, वो फर्स्ट वाला देखो, ये लिखा हुआ फर्स्ट। सेकंड वाले में क्या कराया टीचर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन्हीं दोनों का डिफरेंस। ओके। पहले वाले में क्या कराया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, वो ग्रेटर देन 1। और दूसरे वाले में लाइट बाद में रेयर में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, वो लेस देन 1। ठीक है। फिर आगे क्या कराया टीचर ने? टीचर ने ये कराया क्या कि इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये तीसरा पॉइंट। तो फर्स्ट वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर मीडियम, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर is equal to sine of angle of incidence in denser medium, sine of angle of reflection in rarer medium। ओके। और याद रखना, अगर ये दोनों मीडियम सेम हो तो दोनों एक्सपेरिमेंट, यहां भी पानी और कांच हो, यहां भी पानी और कांच हो, अगर ऐसा हो तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। ये जो टीचर ने आखिर में फॉर्मूला लिया रेसिप्रोकल वाला, इसको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो जिन बच्चों को ये कंपैरिजन समझ आ गया है दोनों में, वो स्क्रीन के ऊपर अच्छे सारे थम्स छोड़ के मेरे को रेस्पॉन्स कर। शाबाश, रिलीज द थंब साइन। नवरीत का आ गया, अभिनूर, मनप्रीत, गुरमीत, देशप्रीत, कोमल,
पिंदरपाल, जस्मीन करके दो तीन बच्चे हैं, महक, वेरी गुड, वेरी नाइस रेस्पॉन्स बेटे। तो आपको ना ये जल्द से जल्द और फिगर नहीं भी बनाना ना तो ये कंपैरिजन चार्ट बना देना। शाबाश। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, दोनों प्रोसेसेस में कंपैरिजन चार्ट आपको जल्दी से नोट डाउन कर लेना चाहिए, जल्दी से, क्योंकि मेरे को टारगेट कुछ ज्यादा दिया हुआ है इन्होंने आज। ओके। और घबराने की जरूरत नहीं, लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, बाद में आप यूट्यूब पे बैठ के आराम से अपनी स्पीड से भी देख सकते। ओके, अब हम इसको स्टोर कर लें, राइट। अब टीचर एक और बेसिक कराएगा, स्कैटरिंग। ध्यान से सुनना बेटा ये वाली है, फिर से 2 बेसिक चाहिए, फिर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली बात, नंबर 1, आपको पता होना चाहिए जो व्हाइट लाइट है बेसिकली ये 7 कलरों के मिक्स होने से बनती है, यानी व्हाइट लाइट हैज 7 कंस्टिट्यूटिंग कलर्स। कुछ बच्चों को तो ये पता होता है कि सर ये वही कलर हैं जो रेनबो में होते हैं, और इसको विबग्योर से लिखते हो आप। कोई आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जो इस विबग्योर के 7 कलर्स के नाम बता सके? पूरे स्कूल में एक भी बच्चा? प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर स्कूल बाय रिस्पॉन्डिंग करेक्टली। शाबाश। राजविंदर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्या बात है। तो मिस्टर राजविंदर सिंह, मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ द स्कूल, इतने बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने, तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी बच्चों को भी जरूर पता होगा। शाबाश, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे बता दिए। अब याद रखना बेटे, योर अटेंशन, अगर हम रेड कलर की तरफ जाते हैं तो किसी भी कलर की वेवलेंथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगी, इन कलर्स की वेवलेंथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो मतलब ये हुआ, बच्चा मेरे से बोलेगा सर अगर मान लीजिए यहां से मैंने ब्लू सोर्स ऑफ लाइट फेंका, ध्यान से देखना, ये ब्लू सोर्स ऑफ लाइट, ये उसकी ये क्रस्ट होगी, ये ट्रफ होगी, नीचे वाला ट्रफ होता है, ऊपर वाला क्रस्ट। ये सोर्स ऑफ लाइट से जब ब्लू लाइट बाहर आई तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो विड्थ होती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसको वेवलेंथ बोलते हैं लैम्बडा। ओके। और अगर मैं येलो कलर की लाइट दिखाऊंगा तो येलो कलर से ये होगी क्रस्ट, ये होगी ट्रफ। तो बच्चा कहेगा सर ऊपर वाली क्रस्ट, ये नीचे वाला झुकाव जो होता है वो ट्रफ, इन दोनों की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको आप लैम्बडा बोलोगे। तो आपका मतलब है येलो वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ब्लू। यस, देखो ब्लू पहले आ रहा है, येलो बाद में आ रहा है, तो इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो एक बच्चा कहता है सर इस हिसाब से तो आपने रेड कलर सबसे बाद में दिखा रखा है, तो मतलब अगर आपका यहाँ सोर्स ऑफ लाइट निकलता तो उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती? बिल्कुल मैक्सिमम होती, राइट। तो इसीलिए मैंने 3 वेवलेंथ दिखाई आपको डिफरेंट कलर्स में। और इसका एक मेमोरी टूल बताऊं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आप रेड आर के अल्फाबेट को ध्यान से देखो, आर के अल्फाबेट को देखा जाए तो उसमें लैम्बडा छुपा हुआ है, देखो ध्यान से। ये टीचर ने देखो लैम्बडा कैसे बना दिया आर का, लैम्बडा आर, आर लेटर में लैम्बडा छुपा हुआ है देखो। तो यहां से आपने हमेशा याद रखना है, while going towards red color wavelength of the colors show the increasing trend। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, ग्रीक लेटर है बच्चे। एक होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है पहले तो यही समझ आ जाए, उसका सिंबल क्या है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये न्यू, देख लो कैसा, ऐसा वी वैन जैसा,
न्यू। ओके, अब ये होता क्या है बेटे, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये येलो सोर्स ऑफ लाइट को मैंने एट ए टाइम ऑन करा, ऐसे ऑन करा। ऑन करते ही 1 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे कितनी वेवलेंथ इस सोर्स ऑफ लाइट ने रिलीज कर दी। द नंबर ऑफ वेवलेंथ या साइकिल्स रिलीज्ड इन टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटे, हर्ट्स, HERTZ सिंबल होता है HZ। और पहले वाला कौन सा टीचर ने लिखा था लेटर, लेमडा, उसको मीनिंग क्या देते हैं, वेवलेंथ, इसका यूनिट मीटर। एक्चुअली एक ना लैंग्वेज हुआ करती है ग्रीक लैंग्वेज, किसी जमाने में वो बड़ी पॉपुलर थी और उसके अल्फाबेट्स वर्ल्ड वाइड नोन थे। फिर बाद में वो रिजेक्ट हो गई लैंग्वेज, पर साइंटिस्टों ने उसके अल्फाबेट्स को साइंस के प्रिंसिपल्स यूज करने के लिए बरत लिया। इसी जिससे आप थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, न्यू, ये सब ग्रीक लेटर उठा, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। इसी की फॉर्म में फार्मूले बनते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी कलर की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें हमेशा सी मिलता है बेटे। सी मैंने velocity of light in air, velocity of light in air, और ये फिक्स होती है कितनी, 3 × 10⁻⁸ जब मैं किसी और स्कूल में ये पढ़ा रहा था, एक अच्छे से बच्चा बड़ा हो गया क्लास में, मेरे को कहता सर अभी आप कह रहे हो ये फिक्स है 3 × 10⁻⁸ पिछले आर्टिकल में रिफ्रैक्शन में आप समझा रहे थे कि ये अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम में, ये क्या बात हुई। मैंने कहा बेटे अपना ही क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक ही पर्टिकुलर कलर की लाइट, मान लीजिए येलो कलर की लाइट, वो हवा में अलग वेलोसिटी से जाएगी, पानी से अलग में जाएगी, कांच में अलग से जाएगी, ये मतलब था वहां पर। लेकिन यहां पर कोई भी कलर की लाइट ले लो, अगर वो हवा में जाएगी, एयर में जाएगी, तो यही वेलोसिटी रहेगी। यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। एक ही मीडियम में किसी भी कलर की लाइट की चली जाए, किसी भी कलर की लाइट एक ही मीडियम, तो ये रहेगी हवा में, और ये सारों की वेलोसिटियां चेंज हो जाएंगी पानी में, सारों की चेंज हो जाएंगी कांच में। तो उम्मीद है आपको फर्क पता लग गया। और कुदरत ने बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ रखी हैं, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रीजन वगैरह वगैरह, बहुत सारी बोल सकता हूं मैं। लेकिन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है, उनमें से कुछ पोर्शन को ही हमारी इंसानी आंख को भगवान जी ने देखने की काबिलियत बख्शी है। जितने स्पेक्ट्रम को हमारी आंख देख सकती है वो होते हैं वायलेट से लेकर रेड तक, और इसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं, विजिबल रीजन फॉर ह्यूमन आई। सभी बच्चों ने याद रखना है ह्यूमन आई। ओके, याद रहे ह्यूमन आई, नॉट एनिमल आई। और इसकी वेवलेंथ की रेंज आपको याद होनी चाहिए, डेल्टा लैम्डा, ये भी डेल्टा होता है, ये बड़े वाला डेल्टा, डेल्टा का मतलब लैम्डा मैक्सिमम से लेकर माइनस लैम्डा मिनिमम तक। यानी रेड कलर की वेवलेंथ में से वायलेट कलर की वेवलेंथ माइनस कर देंगे तो टोटल रेंज बनती है ये। ठीक है, ये कहां से कहां तक बेटे आप खुद इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि मैं आपको रेंज बताने लगा हूं विजिबल रीजन की, कहां से कहां तक, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं एक सवाल, देखते हैं कौन बच्चा क्लास में बताता है। पिछली बार राजविंदर कामयाब हुआ था, क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है
जो मेरे को बताएगा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है in terms of meters. Any single student in the whole school, 1 angstrom is how much? Anybody among girls? Among boys? तो ये आपको पता होना चाहिए था, मेरा ख्याल इस क्लास तक पहुंचते पहुंचते पता होना चाहिए था। 10⁻⁻10 मीटर, नोट कर लो। ओके, अब एक बात और बच्चे, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेल्फ, RAYLEIGH। उसने हमें एक नुक्ता दिया। क्या दिया उसने नुक्ता बेटे? वो कहता जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में से गुजरती है तो वो मीडियम के पार्टिकल उस गुजरती हुई लाइट को कितना बिखेरेंगे, बिखेरेंगे भी कि नहीं बिखेरेंगे। मैं ये दोनों बातें बता सकता। हमने कहा जी बताओ। कहता बता तो दूंगा लेकिन आप उसको हेडिंग ये याद दोगे, रेल्फ क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ scattering of light of wavelength lambda of wavelength lambda, ये बताऊंगा कहता मैंने। हमने कहा जी बताओ इक्वल टू किसके बराबर, ये तो बताओ। कहता नंबर 1 इक्वल बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करती हुई आ रही है मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल उसको चारों तरफ बिखेर भी देंगे कि नहीं देंगे। उसके लिए शर्त सुन लो पहले। बताओ सर क्या शर्त है? कहता अगर ये मीडियम का पार्टिकल है, सफेरिकल मान लो, जैसे आप कह सकते हो धुंध का एक कण, डस्ट का एक मिनिएचर पार्टिकल, ओके, तो उसका डायामीटर नोट कर लो, अंदर अंदर जो भी है। हमने कहा सर यू मीन टू से डायामीटर जिसको अभी टीचर ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं वो वाली चीज ना? कहता यस। एक बार आपको ये डायामीटर पता लग गया और दूसरी बात आते हुए जो लाइट है उसका लेमड़ा पता कर लो, यानी क्रस्ट ट्रफ। मैं समझाया था, इधर देखो ये वेवलेंथ। अगर ये लेमड़ा डी के कंपेरेबल है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू व्हाट, डायामीटर ऑफ द मीडियम पार्टिकल, तब तब ही स्कैटरिंग होएगी, वरना होएगी। अगर ये डी लेमड़ा से बहुत ज्यादा हुआ तो भी स्कैटरिंग नहीं होगी, डी लेमड़ा से बहुत कम हुआ तो भी नहीं। यानी रेल्फ साइंटिस्ट ने बताया लैम्डा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। और जब हमने इसको नोट करके देखा ना, तो हवा, हमारे हवा के अंदर जो पार्टिकल है कौन से हैं ज्यादातर? डस्ट के पार्टिकल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, यही सबसे ज्यादा। इनके मॉलिक्यूलों का जो डायामीटर था वो इन सारी वेवलेंथ्स के आसपास पड़ रहा था। इसका मतलब है हवा जो है इन सारे पार्टिकल्स, सारी कलर की लाइटों को बिखेरने में कामयाब होगी। रेल्फ का क्राइटेरिया का पहला लर्निंग पॉइंट हो गया। इफ दिस हैपेंस देन ओनली स्कैटरिंग ऑफ लाइट striking against the medium particles will happen। स्कैटरिंग का मतलब टकरा के इधर उधर बिखरना। पंजाबी लैंग्वेज में बोलो तो स्कैटर का मतलब होता है खेंडना, खेंडना। ओके, दूसरी बात, फिर इस साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो स्कैटरिंग का मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना ज्यादा होएगा। अगर आप वो नोट करना चाहते हो तो ये स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुना, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और यहां पर इनवर्सली में भी फोर्थ पावर, लेमडा की पावर 4। इतने सर्कल को बोलते हैं रेल्फ क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग।
अब यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है जबकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, उसकी वेवलेंथ है। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये स्कैटरिंग, तो लाल रंग की जो बीम होगी वो जाते जाते सबसे कम बिखरेगी और वायलेट कलर की लाइट जाते जाते सबसे ज्यादा बिखरेगी। लो भाई मिस्टर कमल अभी एंटर कर रहे हैं क्लास में। ओके, तो जिन बच्चों को ये दोनों चीजें समझ आ गई प्लीज रेज योर हैंड, रिलीज द थंब साइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। हमारे एक टीचर होते थे, कहते थे असली टीचर वो होता है जो कॉन्सेप्ट को, साइंस का कॉन्सेप्ट उसको भी समझा दे जिसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड ना बनी हो। यानी अगर आपके पेरेंट्स में से कोई नॉन साइंस पर्सन है, अगर वो भी मेरा लेक्चर सुन के काफी हद तक समझ लेता है तो मैं टीचर हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और बता दूंगा। येलो और ग्रीन के बीच का जो कलर होता है ना बेटे, येलो और ग्रीन के बीच का, जिसको बोलते हैं नियोन कलर, नियोन, जो फ्लोरेसेंट कलर होता है, ओके, ग्रीनिश येलो के बीच में हाइलाइटर वाला, उसके ऊपर इंसान की आंख बेस्ट सेंसिटिव होती है। यानी वो कलर अगर ना भी देखना हो तो भी जबरदस्ती दिख ही जाता है हमें, सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ आपको याद रखनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 5550 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ टू विच ह्यूमन आई इज बेस्ट सेंसिटिव। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे, इसको मैं मेमोरी में डाल रहा हूं, समझदार बच्चों ने जरूर कुछ ना कुछ नोट किया होगा। देखो बेटा, पिछले आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था अभी अभी कि रेड कलर जो है लीस्ट स्कैटरिंग है, लीस्ट स्कैटरिंग। क्योंकि रेड कलर का लैम्डा होता है मैक्सिमम, और रेल्फ साइंटिस्ट ने बोला था कि स्कैटरिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है, गुड, समझ आया। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ भारत जहां पर भी कभी डेंजर का प्रॉब्लम हो, डेंजर हो, खतरा हो, वहां लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए लाल कलर का रंग का यूटिलाइजेशन लेती है। ट्रैफिक के ऊपर चलते हुए यातायात को रोकना हो, ट्रैफिक लाइटों पे, करेक्ट। रेलवे इंजन के फ्रंट के ऊपर लाल लाइट होती है। लोग क्या है ना, जितना मर्जी समझा लो उनको, वो धुंध में या कैसे भी रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, फाटक से नहीं करते, ऐसे क्रॉस करे जाते हैं। और आपको पता ही है, ट्रेन अगर ना दिखे रेलवे इंजन तो इंसान का क्या हाल होगा। तो धुंध में भी वो दूर से इंजन दिख सके, इसलिए इंजन के फ्रंट पर लाल रंग की लाइट लगाई। जो लाइट सबसे कम बिखरेगी वो जाते जाते गाड़ी रहेगी, है ना, गाड़ी रहेगी तो दूर से दिखेगी। ये तो होगी देसी लैंग्वेज, पर पेपर में तो आप ऐसे नहीं लिख सकते गाड़ी रहेगी ये वो, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या बनेगी। According to Ralph criteria, red color has maximum wavelength, so it has the least scattering. Therefore, when we switch on the
light from any red source of light, the ray of light remains least scattering, यानी यहां से जा रही है लाइट, यहां से ये जाते जाते फैलेगी जरूर, लेकिन सबसे कम फैलेगी, least scattering, so it remains concentrated. साइंस के लैंग्वेज में its intensity remains high, so that is why red color is visible from very far distance. तो खतरे से तो आगाह करना चाहती है गवर्नमेंट बड़ी जल्दी। कुदरत ने भी देखो आग को लाल रंग दिया या ऑरेंज दिया ताकि जल्दी से पता लग जाए। रेड के साथ ही ऑरेंज था, गौर से देखो, विबग्योर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, राइट। अब क्यों बिजली का पोल हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खोपड़ी का निशान बनाया होता है, स्कल का, इससे दूर रहो, हाथ मत लगा देना। कौन से कलर में बनाया होता है? लाल रंग में। अच्छा, जब मैंने इस क्लास चीज को समझाया ना, तो पिछले साल एक लड़का बड़ा शरारती था, उसने इसी साइंस की नॉलेज का मिस यूज कर लिया। जानते हो कैसे? लोग, वो कहता सर आपके मुताबिक रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग है ना? मैंने कहा हाँ बेटा। सबसे कम स्कैटरिंग है ना? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि उसकी लैम्डा मैक्सिमम, स्कैटरिंग मिनिमम है। तो सर फिर वायलेट कलर या इंडिगो या ब्लू, ये ये बहुत ज्यादा फैलेंगे ये तो। मैं कहा बिल्कुल। तो देखो वो लड़का कितना स्मार्ट था, उसने ना बुलेट मोटरसाइकिल का ये जो नंबर प्लेट होती है पीछे, इसमें लिखा होता है CH01 जो भी, है ना? उसने क्या करा, इस नंबर प्लेट में ना यहाँ वायलेट कलर के LED लगवा लिए किनारों। वायलेट ना मिले तो इंडिगो, इंडी ना मिले ब्लू, एक नील कलर होता है, बैंगनी कलर होता है, नीला रंग होता है, तीनों लगभग एक ही है। तो जैसे ही वो ट्रैफिक पुलिस उसको खड़ी हुई दिखती थी और वो बिना हेलमेट के हो, तो वो हैंडल के पास लगे हुए इस स्विच को ऑन कर देता, ऑन कर देता तो ग्लेयर आ गई, ब्लू कलर बहुत ज्यादा फैलेगा, वायलेट सबसे ज्यादा फैलेगा। तो अगर यहाँ ट्रैफिक पुलिस का कैमरा लगा हुआ है तो उसको फैली हुई लाइट ही दिखी जाती है, अंदर लिखा हुआ नंबर दिखता ही। तो शरारती बच्चे साइंस को ऐसे मिस यूज कर लेते हैं, करेक्ट। तो फिर भाई ये तो गड़बड़ थी, तो मैंने ट्रैफिक पुलिस को फिर उसका तोड़ भेजा कि नहीं जी, अगर कोई बच्चा ऐसे भी शरारती करता है, वो तो बच्चा है, करेगा कुछ ना कुछ, तो मैं आपको इसको तोड़ बताता हूँ कि ये कैसे पढ़ा जा सकता है नंबर। पर मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उसका भी तोड़ निकाल लोगे। नाटी बॉयज होते हैं इस उम्र में ना। सो आजकल पुलिस इसको भी पढ़ लेती है। ओके, सो अल्टीमेटली मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपलों से स्कैटरिंग के ऊपर बात करी। एक और समझाऊंगा। एक बच्चा मेरे से पूछता, सर जब तो सवेरे और शाम को हम सूरज देखते हैं तब तो वो संतरी या लाल रंग का दिखता है, दोपहर को सफेद दिखता है, ऐसा क्यों? कैन एनीबॉडी इन द क्लास टेल मी why the morning and evening sun appears orange red, or you can say reddish orange, whereas the afternoon sun appears bright white? Is there any student who can tell me? क्वेश्चन तो दमदार है, क्यों भाई मनप्रीत? दमदार है ना? कितने बच्चों ने फोटो लगा रखी है अपनी? अरमान, थालीवाल, मनप्रीत, बाकी बच्चों ने लगाई नहीं। ओके लिसन, सो बेटे आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा अर्थ। ओके, अर्थ के ऊपर मैक्सिमम अप टू 12 किलोमीटर एटमोस्फियर होता है, यानी 12 से ऊपर जाएंगे तो हवा भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस 12 किलोमीटर में भी
आखिरी के 4 किलोमीटर में जो हवा होती है नाम मात्र होती है, तो हम 8 किलोमीटर तक ही अर्थ का एटमॉस्फेयर मानते हैं सारी तरफ। कितनी? प्रैक्टिकली 8 किलोमीटर तक। ओके, अब सुनो जरा ध्यान से। दोपहर के वक्त सन कहां पर होगा बेटे? एग्जैक्टली एट योर हेड, यहां पर सन है। ओके, तो सन से ये व्हाइट लाइट आई। अभी अभी टीचर ने क्या सिखाया था? व्हाइट लाइट में कितने कंस्टिट्यूटिंग कलर्स होते हैं? 7। किस नाम से बताते हैं? विबग्योर। तो ये 7 के 7 कलर हवा के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अब रेल्फ क्राइटेरिया, सातों कलर बिखरेंगे, हैं? और सबसे ज्यादा बिखरेगा ब्लू कलर, सबसे कम बिखरेगा आपको पता ही है रेड कलर। फिर भी वो बिखरते बिखरते सारे बिखरेंगे इधर, और आप यहां पर रहते हो अर्थ के, तो बिखरते बिखरते भी सातों कलर आपकी आंखों में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है, 8 किलोमीटर। तो 7 colors are scattered by different magnitudes as per Ralph criteria, but still all of them succeed to enter the human eye. That means human eye will see the 7 colors collectively. तो जब सातों कलर दोबारा जुड़ गए तो दोबारा से व्हाइट बन गया, और दोपहर का सूरज व्हाइट ही दिखेगा। छोटी क्लासों में आप न्यूटन डिस्क करते थे ना, एक एक्सपेरिमेंट। एक चक्कर ले लिया, उसके ऊपर ट्रायंगल बना दी, सर्कल के ऊपर, गत्ते के सर्कल के ऊपर सातों कलर दिखा दिए, उस न्यूटन डिस्क को बना घुमाते हैं तो वो व्हाइट दिखती है। मेरे पास पड़ी भी है, देखो न्यूटन डिस्क नहीं है। गुड, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देखिए यार सेट कर। तो व्हेन आई वाज इन योर एज ना, यंग एज, मैंने अपने मोटरसाइकिल का जो टायर होता है, व्हील कवर, उसका यही बनाया हुआ था। तो व्हेन माय मोटरसाइकिल वाज एट वेरी स्लो स्पीड, तो लोगों को 7 कलर दिखते थे। जैसे मैं उसकी रेस पकड़ता था तो वो व्हाइट दिखता था उनका। वो लड़के जो आम उम्र के होते हैं, वो यार ये कैसे कैसे, एंड आई जब व्हेन दे वर आस्क मी कैसे होता है काबू की, ये कैसे बनाया, तो आई वाज फीलिंग इम्पोर्टेंट। वो एज ही ऐसी आती है इंपॉर्टेंट फील करते हैं तुम्हारी है। अभी मैं न्यूटन डिस्क मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा है, वो ला रहे हैं, और मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। चलो, दोपहर में तो हमें व्हाइट दिख गया, भाई मॉर्निंग में क्या होता है? सुनो इधर, आप कहां पर रह रहे हो? यहाँ पर। और अर्थ के कर्वेचर से सनलाइट कटेगी, देखो मैं स्ट्रेट लाइन बना के दिखाता हूँ। तो यहां जैसे ही सन उगता है ना, कर्वेचर से बाहर आई, कटिंग से हटेगा, तो हमें सनलाइट दिखेगी। तो सनलाइट, ध्यान से सुना, सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतना डिस्टेंस कवर करती है जितना टीचर ने मेंशन कर दिया फिगर। दिस इज डी। आपको सुन के हैरानी होगी, ये सुबह वाला जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर बनता है, 21, लगभग 3 टाइम्स। और मॉर्निंग में 8 किलोमीटर था ना, सॉरी दोपहर में, मॉर्निंग या इवनिंग में 21 किलो। तो 21 किलोमीटर जैसी लाइट यहाँ एंटर हुई, सातों कलर एंटर हुए, व्हाइट लाइट सन से आई। ओके, तो वो सातों कलर रास्ते में बिखरते हैं एज पर रैल्फ क्राइटेरिया। तो इतना लंबा डिस्टेंस होने पर ऑरेंज और रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे रास्ते में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा। 2 कलर आखिर में जो थे सबसे कम बिखरते हैं, ऑरेंज और रेड, वो फिर भी इंसान की आंख में कामयाबी से पहुंच पाते हैं। तो सातों कलरों में से पहुंचे ही 2 कलर, ऑरेंज और रेड, बाकी स्कैटर करके बिखर गए, एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब भी हो गए लंबा डिस्टेंस होने की वजह से। दैट इज व्हाई मॉर्निंग एंड इवनिंग सन्स आर ऑरेंज रेड इन कलर, और रेडिश ऑरेंज यू कैन से। ठीक है बेटे? तो जिन बच्चों को ये सन वाला सिस्टम कैसे ये कलर चेंज करता है समझ आ गया अच्छे से, वो जरा स्क्रीन पे थंब छोड़ के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्या बात है, एक्सेलेंट रेस्पॉन्स, बहुत अच्छे। मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि बच्चे चाहे रजाइयों में बैठे हैं घरों में, पर फिर भी मेरी बात अच्छे से सुन रहे।
ओबीडियंट स्टूडेंट्स, नाइस। कम से कम पढ़ाई की लापरवाही नहीं कर रहे। उनको अच्छे से पता है 10th के बोर्ड एग्जाम अच्छे होंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी स्ट्रीम मिलेगी। शाबाश, प्रेज वर्दी रेस्पॉन्स। अब ये मॉर्निंग और इवनिंग सन मैंने दिखाया आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पढ़नी। कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर जो हमारा स्काई है ना, स्काई ये ब्लूइश इन कलर क्यों होता है? ब्लूइश और ब्लू में क्या फर्क होता है? ब्लू कलर में व्हाइट कलर को मिक्स कर दें तो वो ब्लूइश बनेगा। ओके, येलो कलर में व्हाइट को मिक्स कर दे तो येलोइश, रेड कलर में व्हाइट को मिक्स करते तो रेडिश। एनीहो, बच्चा मेरे को कहता है सर अगर लाइट में सातों कलर है तो ये ब्लूइश क्यों दिखता है? और एक दूसरा बच्चा मेरे से पूछता है सर अगर हम मॉर्निंग का सन या इवनिंग का सन 8 किलोमीटर से बाहर जाके एरोप्लेन में बैठ के देखें तो क्या वो व्हाइट ही दिखेगा, चाहे सुबह का टाइम भी हो? यस, आप इस 21 किलोमीटर से बाहर आ जाओ इधर मॉर्निंग में और उधर से 8 किलोमीटर बाहर चले जाओ, आपको सन व्हाइट दिखेगा, ऑरेंज रेड भी नहीं दिखेगा मॉर्निंग के वक्त भी। ओके, क्योंकि आपने हवा के एटमोसफियर से बाहर चले गए। स्कैटरिंग करनी ही किसने है? स्कैटरिंग करनी है हवा के एटमोसफियर, उससे आप बाहर चले गए, राइट। एनीहो, अब आ गया बच्चे का ये सवाल, ब्लूइश वाला। मैंने विबग्योर के स्पेलिंग द्वारा लिखे। ओके, विबग्योर के स्पेलिंग जब द्वारा लिखे बच्चे, तो मैं उस बच्चे से पूछा कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी एज पर रेल्फ क्राइटेरिया, अभी जो करा था। वो कह रहे सर वायलेट की सबसे कम ज्यादा स्कैटरिंग होगी और रेड की सबसे कम स्कैटरिंग होगी। ओके ओके, वायलेट की सबसे ज्यादा, ठीक है। तुम्हें पता है वायलेट, इंडिगो और ब्लू, नीला रंग, बैंगनी रंग और नील वाला रंग कपड़े धोने वाले के लगभग एक ही रंग होते हैं। तो इसको आप तीनों को मिलाकर ब्लू सेट कह सकते हो, ब्लू सेट ऑफ कलर्स। तो इन तीनों कलर की परसेंटेज ओवरऑल मैक्सिमम होगी अगर ब्लू सेट की परसेंटेज मैक्सिमम होगी सारे कलर मिलाकर, ठीक है, बहुत अच्छे, परसेंटेज मैक्सिमम होगी। अब ऊपर से इनका बिखराव भी सबसे ज्यादा है, क्यों? इनका लैम्बडा मिनिमम है और रेल फेरता स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इनका लैम्बडा कम, स्कैटरिंग मैक्सिमम। एक तो इसकी विबग्योर कलर में परसेंटेज मैक्सिमम होगी बेटा, सेकेंडली ये बिखरता भी मैक्सिमम है। अब आप इमेजिन करो मेरे सामने सफेद कलर की चादर लटकी हो, मेरे पास अलग अलग कलर की इंक हो, मैं उस हाथ डुबो के अलग अलग कलर की इंक में ऐसे छींटे छींटे थ्रो कर दूं, छींटे मार दूं चादर पे ऊपर, और फिर मैं कंडीशन ये हो कि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरे, तो उस शीट के ऊपर कौन सा कलर उभर के आएगा? ब्लूइश। इंग्लिश में बोलूं तो इन द विबग्योर सेक्शन वायलेट, इंडिगो, ब्लू together make the blue set, and as per Ralph criteria their wavelength being the smallest their scattering is maximum. So one, their percentage is maximum color wise, second content of color maximum हो गया, second their scattering is maximum. So on the white contrast screen maximum scattering color is bluish color and hence sky color appears bluish. अब बच्चे कहते ब्लू क्यों नहीं दिखता, ब्लूइश क्यों दिखता है? भाई आसमान पीछे व्हाइट है कि नहीं है? अभी टीचर ने क्या बोला था, ब्लू में व्हाइट मिक्स कर दो तो ब्लूइश, तो व्हाइट भी तो अपना असर छोड़ेगा। गॉट इट? जिन बच्चों को ये समझ आ गया स्काई इज ब्लूइश, व्हाई? शो द थंब साइन, शो द थंब साइन। वाओ, गुड जॉब। अब मैं अपने देखो मैंने न्यूटन डिस्क मंगवा लिया, मैं आपके कैमरे के ऊपर बिल्कुल फोकस करूंगा, गौर से देखो, ये देखो 7 कलर इसमें क्लियरली दिख रहे हैं। और सच बताऊं तो इसमें मैंने सातों कलर के 2 सेट बना रखे हैं डिस्क के,
अब देखो इसमें ब्लू भी 2 बार दिखता है, रेड भी 2 बार, येलो भी 2 बार। तो विबग्योर बना के फिर से एक बार विबग्योर बना दिया। चाहो तो आप एक ही बार विबग्योर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क। ओके। और पीछे इसमें मैंने ये मोटर लगा रखी है, डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर लगा रखी है छोटी सी। और ये सेल लगा रखे हैं, और ये रेड कलर का ऑन ऑफ स्विच है। अभी आपको ये 7 कलर दिख रहे हैं, राइट। अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ना बेटे, यू विल बी सरप्राइज, सारी डिस्क आपको व्हाइट दिखेगी। जैसे मैंने अपने बाइक के लिए बोला था। एक्चुअल में होता क्या है, कमरे में से आ रही लाइट इन 7 कलरों से टकराती है। उस कलर की लाइट अकॉर्डिंगली आपकी आंख में जा रही है। जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, डिस्क घूमेगी, तो 7 कलर अलग अलग डायरेक्शनों से तुम्हारी आंख में जाएंगे, और आंख में जाते हुए ये मर्ज हो जाएंगे, है ना। जिस जगह से रेड कलर जा रहा है वहीं से व्हाइट दिखेगा, वहीं से ब्लू दिखेगा, वहीं से येलो दिखेगा। क्यों? डिस्क जो घूम रही है। तो इसका मतलब है सारी तरफों से डिस्क के डिफरेंट एरिया से सारे कलर आपकी आंख में आएंगे। तो आंख के अंदर 7 कलर मिक्स हो जाएंगे। रेटिना उनको सेंस करेगा तो व्हाइट दिखेगा। मैं इस स्विच को ऑन करके दिखाता हूं, देखते हैं ये व्हाइट बनता है कि नहीं बनता। एवरीबॉडी, ये मैंने कैमरा पे फोकस कर दिया, ध्यान से देखो। नाउ मैं इस रेड बटन को दबाने लगा हूं। ये आपके सामने दबाया, ये दबाया, ये डिस्क घूमी, देखो तो व्हाइट बना बच्चे। यस। अब मैं इस स्विच को ऑफ करके दिखाता हूं। देखो गौर से देखो, शाबाश। ये देखो, एज सुन एज इट विल गेट स्लो, तो इसके 7 कलर फिर से दिखने लगे। मैं फिर से ऑन करता हूँ। इस वक्त इस बार मैंने डिस्क का फेस आपकी तरफ रखा हुआ, देखो। ये ऑल द 7 कलर एंटरिंग इनटू योर आई। और यहां से ये कंफर्म भी हो गया एक्सपेरिमेंटली कि व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 constituting colors by the name Vibgyor. Got it? अब बच्चे, मेरे को ना एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको अभी, लेकिन मेरे को पूछना पड़ेगा अपने डायरेक्टर साहब से, क्या मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ? लेट मी आस्क। यस बेटे, अलाउड। क्या दिखाना मैंने अपने आप को? प्रिज्म। प्रिज्म के 2 फिगर बनाने। ओके। प्रिज्म कैसा होता है? फ्रंट से ट्रायंगुलर फेस होता है, कांच का बना होता है यूजुअली। लास्ट में ट्रायंगुलर फेस होता है, और इनको तीनों साइडों से रेक्टेंगुलर फेस से जोड़ा होता है। ये हो गया एक रेक्टेंगुलर फेस। ये जमीन पे लेटा हुआ दूसरा रेक्टेंगुलर फेस हो गया, देखो। और उस तरफ तीसरा। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस अंदर से कांच से भरा होता है। ये सारा बन गया हमारा प्रिज्म। और इसको फ्रंट से दिखाऊं अगर मैं, तो ऐसे दिखेगा। और जो टेबल के साथ टच कर रहा है पोर्शन, उसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हो सकता है, यूजुअली ग्लास। आप में से कितने बच्चों ने प्रिज्म को देखा हुआ? रेज योर हैंड। प्रिज्म, थंब, रिलीज द थंब साइन। प्रिज्म अगर आपने देखा हुआ है। नहीं देखा भाई, प्रिज्म लेके आओ, बच्चों को दिखाएं। तो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। अच्छा, जिन बच्चों ने प्रिज्म नहीं देखा, वो एक बार थंब का साइन छोड़े। थंब का साइन स्क्रीन पे, जिन्होंने प्रिज्म नहीं देखा। अरे, जिन्होंने देखा वो छोड़ना एक बार। ओके चलो, ठीक है ठीक है, बस मेरे को यही देखना था कि आप क्लास में हो भी अटेंटिवली कि नहीं। गुड गुड। तो मैं, आप लोगों ने प्रिज्म देखा नहीं बेटे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक आता है हम इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। जो साइड प्रिज्म की टेबल के साथ लगी होती है, उसको बेस ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और अपोजिट एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो।
कैमरे में देखो गौर से, मैं पास करके दिखाऊंगा, ये मेरे हाथ में है इस वक्त, मैं क्लोजर करके दिखाता हूँ। ये देखो ट्रायंगुलर फेस, और बैक साइड से ट्रायंगुलर, और साइडों से रेक्टेंगुलर फेसेस। 5 फेसेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर। हो गया, पीछे करूं तो हो सकता है शार्प इमेज बन जाए। राइट, ये प्रिज्म होता है बेटा। तो इस प्रिज्म के, देखो इधर से, यहां से मैंने सोर्स ऑफ लाइट थ्रो करा। ये सोर्स ऑफ लाइट किसी भी कलर की लाइट थ्रो कर सकता है, व्हाइट कलर की लाइट नहीं थ्रो करनी है आपने, व्हाइट के बिना कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एनी सिंगल कलर। मोनो मैंने सिंगल, क्रोमेटिक मैंने कलर। व्हाइट क्यों नहीं यूज करनी? क्योंकि व्हाइट का तो मतलब ही होएगा 7 कलर यूज कर। टीचर कह रहा है एक कलर की। ओके, तो ये होगी बेटे मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। किसी भी कलर की छोड़ सकते हो। अगर आप रेड कलर की छोड़ोगे तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा एक्यूरेसी से आएंगे, क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटरिंग है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गई होती, सेम स्ट्रेट लाइन। पर अब प्रैक्टिकली ऐसा होएगा नहीं। क्यों? ध्यान से सुन लो, क्यों नहीं होएगा। यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रा करा, लाइट हवा से कांच में जा रही है, मीनिंग रेयर टू डेंसर में एंटर कर रही है। और ये ब्लू, ये सॉरी ग्रीन कलर वाली लाइन मैंने नॉर्मल ड्रा करी है। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर, रिफ्रैक्टिंग एज नंबर 1, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल ही कहा जाएगा। इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया एंगल ऑफ ग्लांस। और क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, इसलिए ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी। ये जो ग्रीन कलर का ना उधर को झुक जाए, हमने रिफ्लेक्शन में यही पढ़ा था। ये लो, इधर चले। अब ये लाइट हमारे मुताबिक तो ऐसे निकल जानी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन, पर एक बच्चा कहता है सर नहीं हो गया स्ट्रेट लाइन। आई सेड क्यों? कहता सर ये भी तो रिफ्रैक्टिंग एज नंबर सेकंड है, रिफ्रैक्टिंग एज नंबर सेकंड, इसमें अंदर देखो डेंसर मीडियम है, कांच बाहर रेयर है। मैंने कहा गुड, सेकंड रिफ्लेक्शन हो जाएगी फिर। सर वहां भी नॉर्मल ड्रा करो आप। मैंने कहा लो भाई, नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये देखो नॉर्मल ब्राउन कलर से शो कर। बच्चा कहता है नॉर्मल कैसे है? मैंने कहा बेटे नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या ये 90 डिग्री लग नहीं रहा तुम्हें एंगल रिफ्रैक्टिंग एज के साथ? लग रहा है सर। तो ये हो गया नॉर्मल सेकंड, वो नॉर्मल फर्स्ट था। अब लाइट किधर से किधर को जा रही? लाइट जा रही है डेंसर से रे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए। तो ये रे ऑफ लाइट जो यहां से निकलेगी ना बेटे, वो ऐसे निकल जाए अवे फ्रॉम। इसको बोलते हैं ई आर, इमरजेंट रे। ओके, और एक बात सुनो, इमरजेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, जिसको टीचर ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, स्मॉल ई, इमरजेंस, EMERGENCE, इमरजेंस। ओके, एक चीज और, लाइट जा किधर को रही थी एक्चुअल में? येलो डॉटेड पाथ। प्रिज्म ने किधर को भेज दिया? इमरजेंट रे की तरफ। इन दोनों रेज के अंदर इस प्रिज्म ने इतना एंगल का मोड़ डाल दिया, मोड़। ये जिसको टीचर पिंक कलर से मैजेंटा कलर से शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के द्वारा। और हम लोग कर क्या रहे हैं? रिफ्रैक्शन, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं बेटे। हेडिंग ये होना चाहिए। ओके, अब सुनो आगे। अगर कहीं मैं यहां पर प्लेन मिरर रख दूं, आईना रख दूं जिसमें हम अपना फेस देखते हैं सुबह सुबह उठ, और ये इमरजेंट रे ऐसे टकराए परपेंडिकुलरली, बिलीव मी ये सारा रास्ता वापस ट्रेवल कर जाएगी इधर, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर जाके गिरेगी। ओके, अगर ये मिरर रख दें तो प्लेन मिरर, वैसे रखना जरूरी नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो जब
रेयर टू डेंसर गई, तब हमने इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बोल दिया। अगर मिरर से टकरा के इधर आ गई होती तो फिर इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 बोलते हैं। ये पूरे का पूरा प्रिज्म है, याद रहे इस पूरी डायग्राम में क्या लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपको और एडिशनल क्या याद रख, समझदार बच्चे ने डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करेगा या कर ली होगी। ये फार्मूले याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बच्चा बोले सर प्रूफ क्या है, प्रूफ में कराऊंगा आपको 10th क्लास में। और अगली बात, ए के अंदर डेल्टा ऐड कर दो, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये भी याद रखो। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एक फार्मूला और भी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल्स हैं, याद रखें। तो ये 4 फार्मूले लिख दिए और ये डायग्राम बना दिए। मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई भी टीचर आपसे कोई भी मार्क्स कट कर लेगा। पर याद रखना एब्रीवेशन जरूर लिखना। क्या एब्रीवेशन, कि अगर आपने आई आर लिखा है तो आई आर को साइड पे मेंशन करना है इंसिडेंट रे। अगर आपने अंदर वाली रे को आर आर लिखा है तो रिफ्रैक्टेड रे, निकल रे को ई आर लिखा है तो इमर्जेंट रे। ये सारा मेंशन कर, देखो फुल बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा फिगर बनाया आपको। जिन बच्चों को रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म अच्छे से समझ आ गया है वो जरा हाथ खड़ा कर लो फटाफट। थंब रिलीज द थंब साइन, फीडबैक तो जरूर चाहिए मेरे को। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें सुस्ती ना करा करो बेटे, यही एक टीचर के पास इंडिकेशन होती है कि हाँ उसके बच्चे सुन रहे। ओके, तो हम इसको भी स्टोर कर लेते हैं। अब मेरे पास एक चीज बची है, देखो तो पूछ के। हाँ जी, कह रहे हैं 5 मिनट और ले सकते हैं, बस 5 मिनट। बच्चा मेरे को बोलता है कि सर मान लीजिए आपका ये प्रिज्म है, पहले तो ये बता दो ये तीनों एंगल क्या 60 डिग्री होते हैं? नॉट नेसेसरी, 60 डिग्री नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, हो भी सकते। ओके, अब सुनो, इस प्रिज्म में ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चा मेरे को कहता है सर आपने स्पेशली हमें बोला था कि ये सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। बेटे सुखमन सिद्धू ने हाथ खड़ा करा हुआ है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सुखमन, सुखमन सिद्धू इज रेजिंग द हैंड डिजिटली ऑन द स्क्रीन। बाय चांस दब गया या आप कुछ पूछना चाहते हो? By mistake. ओके, कोई बात। सो बेटे यहां से सोर्स ऑफ लाइट आ गया, यहां से टीचर इस बार व्हाइट कलर की लाइट छोड़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इंसिडेंट रे। इस बार कंडीशन है कि मैं ले ही व्हाइट रहा। अब व्हाइट का क्या मतलब है, सातों कलर आ रहे हैं, सातों कलर आ रहे हैं तो सातों कलर की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगी, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होएगा डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट यहां से ऐसे मुड़ेगी फिर उसके बाद ऐसे मुड़ेगी तो ये 7 कलर होंगे इसमें, इतने पैटर्न, क्योंकि बेसिकली 7 कलर हम थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसमें, जैसे ये भी होगा और कोई होएंगे। देखो मैं इधर से 7 लाइनें बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक शेड अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि 7, और ये जो 7 कलर है बेटे, तो व्हाइट लाइट प्रिज्म में से निकल के अपने 7 कलर्स में टूट गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन।
Dispersion is the process of splitting of white light into 7 constituting colors when it is passing through the prism. Got it? तो ये सबसे नीचे कौन सा कलर पाया गया? वायलेट. ऊपर को स्पेलिंग लिख दो. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. और ये व्हाइट स्क्रीन के ऊपर डिस्पर्शन की वजह से व्हाइट कागज की स्क्रीन के ऊपर ये जो खूबसूरत सा पैटर्न बनेगा, मोर के पंखों की तरह खूबसूरत, उसको हम बोलेंगे क्या? स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बोलेंगे. बिखेरा स्पेक्ट्रम. हम कभी कभी क्या बोलते हैं? द स्पेक्ट्रम ऑफ frequency for broadcasting the signal on star plus. स्पेक्ट्रम मैंने यहां से यहां तक वेव. ओके, रेंज कह सकते हैं मोटे तौर पे. तो स्पेक्ट्रम आ गया. पैटर्न को क्या बोलेंगे? जो मिल गया ब्यूटीफुल, जिसको हम टच भी कर सकते हैं स्क्रीन. स्पेक्ट्रम. और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन. तो बच्चा कह सकता है सर डिस्पर्शन का रिजल्ट स्पेक्ट्रम है, सीधी बात ये कहो आप. आंसर इज यस. डिस्पर्शन प्रोसेस का रिजल्ट स्पेक्ट्रम. और एक चीज देखो बेटे, यहाँ पर अगर ये व्हाइट लाइट प्रिज्म की एब्सेंस में जाती तो किधर जाती? इधर जाती. तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो गया? रेड कलर का सबसे कम हो गया. और ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो गया? वायलेट कलर का सबसे बड़ा हो गया. तो वायलेट कलर के एंगल ऑफ डेविएशन से रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस कर दे, तो जितना भी एंगल आएगा उसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं. थीटा को एंगुलर डिस्पर्शन. अब एक बहुत ही खास बात बोलो, यहां कहां से आ रही है लाइट? व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि टॉर्च से आ रही है. ये क्या है? प्रिज्म. ये कागज क्या है? स्क्रीन. अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कागज को, पेपर को, जो कि स्क्रीन का काम कर रहा है, पेपर को रिप्लेस कर दूं स्काई से, आसमान से, और प्रिज्म को क्या रिप्लेस कर दूं? बारिश के रुकने के बाद हवा में लटकी हुई मॉइस्चर की बूंदों से, नमी की बूंदों से. करेक्ट. शबनम जिसको कहते हैं, उसकी बूंदें हवा में लटकी हुई. और सोर्स ऑफ लाइट को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? सन से. तो सन से व्हाइट लाइट आई, रेन ड्रॉपलेट्स ने उसकी डिस्पर्शन करी, और सामने स्काई नुमा स्क्रीन के ऊपर 7 कलर का ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा. तब उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम ना बोल के कुछ और नाम देते हैं. कोई बच्चा बताएगा उसको क्या कहते हैं? एनीबॉडी? रेनबो. शाबाश. उसको हम बोलेंगे रेनबो. रेनबो. बिल्कुल. तो अब आपको समझ आ गया रेनबो कैसे दिखाई दे. ठीक है. तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में जो सीनियर क्लासेस पढ़ाते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऐसे ऐसे बड़ी क्लासें, एंट्रेंस एंट्रेंस, तो हम कंपटीशन करवाते हैं बच्चों का आपस में. तो एक बैच को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम, दूसरे बैच को देते हैं रेनबो, तीसरे बैच को हम देते हैं विबग्योर. गौर से देखा जाओ, मीनिंग मोर और लेस एक ही है कि नहीं? तो बच्चों को भी नहीं लगता कि हमारे को घटिया नाम दिया या अच्छा दिया. तो लेकिन नाम अलग अलग भी हो गए. तो इस तरह से हम अपना कंपटीशन करवाते हैं. जिन बच्चों को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, वो बच्चे रेज योर हैंड, रिलीज द थम्स.
गॉट 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 बहुत अच्छा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले रेनबो का कारण क्या है, रेनबो का, तो आप क्या कहोगे? एक तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन, दूसरे आप बोलोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा आप बोलोगे डिस्पर्शन। ये तीन चीजें आपने रेनबो के ड्रॉपलेट के अंदर होती हैं। रेन की ड्रॉपलेट में तब हमें रेनबो मिलता है, उसका वाई हो गया। टीआईआर का फुल फॉर्म क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो बच्चा इसको अपने मन से एक रीडिंग भी देना चाहता है तो वो 10th क्लास की ऑप्टिक्स लाइट वाला चैप्टर पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, जितना आपकी बुक में दिया हुआ है मैंने उससे 15% ज्यादा करवाया। अगर आप बोलते बोलते भी 15% भूल जाओगे तो भी आपका अच्छे लेवल का पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। जय हिंद। कितने बच्चे मेरे जय हिंद का अच्छे लेक्चर का रिस्पॉन्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ थंब? जो थंब छोड़ेगा उसको मैं जय हिंद समझूंगा। ओह वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे ज्यादा खुशी पता है मेरे को कब होती है बच्चे? मैं बहुत बड़ी सारी क्लासों को पढ़ाता हूँ, इधर उधर हरियाणा में, यूपी के बच्चे, लेकिन पंजाब के बच्चों को पढ़ाने में मेरे को सबसे बड़ा अच्छा लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई पंजाब च हो रखी। जब मैं पंजाब के बच्चों ने पढ़ाना तो मैंने लगता है मैं अपनी स्टेट का कुछ ना कुछ वापस दे रहा। किसी जमाने में हमारी स्टेट च बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छी। एंड वी आर लकी अमंग दोज बच्चेस। थैंक यू।